Welcome back, friends. In this lecture, we are going to discuss the adjoint method to find out the inverse of a square matrix. As such, we have already seen transformation method, under which we have understood how to find out inverse of a square matrix by row transformation as well as column transformation. Now, apart from the transformation method, there is another method, we call it as adjoint method. And in this adjoint method, we don't have to use any transformation. So student, आपके लिए थोड़ा ये method easy भी है कि वो रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सोचना पड़ता है ना कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से आगे हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ रहा था. But in this, there is no such transformations. This is a kind of method in which a particular rule is to be administered sequentially, and finally you will be getting inverse. Now, what is all this procedure? To understand this, we are going to remember one code word, MCA. Now, what is the full form of MCA? Mumbai Cricket Association. What is the full form of MCA? Mumbai Cricket Association. What can be the full form of MCA? Master of Computer Application, MCA. बहुत से स्टूडेंट करते हैं ये कोर्स. इन लोगों को कंप्यूटर का ज्यादा इंटरेस्ट है कंप्यूटर फील्ड में. But students, the actual abbreviation of MCA is minor, cofactor and adjoint. Minor, cofactor and adjoint. First is minor, second is cofactor, third is adjoint. Students, ये तीन steps आपको फॉलो करने हैं. ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये खाली याद रखने के लिए मैंने लिखा हुआ है. एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है इसका? माइनर, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एन एग्जांपल and try to understand how we are going to find the final answer as an inverse of a given square matrix, so that we can properly apply. First minor ढूंढना है, second cofactor ढूंढना है और third adjoint ढूंढना है. एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने में एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं, दैट इज गिवन मैट्रिक्स A, that is 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 3. एंड कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो पहले उसके लिए वो कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं कि इट शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इसके लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना, उस हिसाब से पहले हमें चेक करना पड़ेगा इसका डिटरमिनेंट वैल्यू. सो लेट मी हैव determinant value of A
that is 1, 2, 3, -3 to -1, 2, -4, 3. So सॉल्यूशन में पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि ये नॉन सिंगुलरिटी का हमें क्राइटेरिया ऑब्टेन हो जाए। एंड फाइनली ये डिटर्मिनेंट ए का भी हमें जरूरत पड़ने वाला है। तो पहले भी ये निकालना है क्योंकि वो आइडेंटिफाई करना है मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑब्टेन इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 into 3 into 6 minus 4 into 1 4 minus 2 into 3 into -3 -9 minus 2 into -1 -2 plus 3 into -4 into -3 plus 12 minus 2 into 2 4. So it will be 6 minus 4, this is 2 minus 2 into, this is -9 plus 2, -9 plus 2 -7 plus 3 into 12 minus 4, that is 2 plus 14 plus 24, which is going to be 4040, which is not equal to 0. So here determinant A is not equal to 0. Therefore A is non-singular matrix. Therefore matrix A is invertible, or you may say inverse of matrix A does exist. Now friends, after getting this determinant value, we have to look at the step what we have to apply. That is, first step is to find out its minor. First step is to find out its minor. Now how to find out the minor of a given matrix, जरा ध्यान से समझ लीजिए। बहुत इजी है मगर इसका प्रोसीजर आपको पता होना जरूरी है। So first we are going to obtain minors. Which we denote by capital letter M. Minor को हम कैपिटल लेटर M से डिनोट करेंगे। फर्स्ट M11। स्टूडेंट्स आप जरा हमारा मैट्रिक्स देखो, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड इट हैज टोटल 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स है, तो टोटल जितने एलिमेंट्स होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर उतने माइनर्स निकलते हैं। आई रिपीट, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने माइनर फाइंड होते हैं। तो 9 एलिमेंट है टोटल, 9 माइनर्स वी कैन फाइंड। नाउ हाउ टू फाइंड? पहले तो माइनर निकालने के लिए नोटेशन का इस्तेमाल क्या करना है, दैट आई हैव शोन दैट M11 and what is this 1 1 representing? All of you know that is a position, first row first column,
उसका माइनर निकलेगा। मतलब पहले किसका माइनर निकलेगा, ये एलिमेंट का निकलेगा, क्योंकि वो पोजीशन का हिसाब है ना। देखो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब माइनर कैसे निकालना है, तो के उस एलिमेंट के लिए जिसके लिए आप माइनर निकालते हो, वो एलिमेंट कौन से रो में है, उसको कैंसिल करो। वो एलिमेंट कौन से कॉलम में है, उसको कैंसिल करो। आफ्टर कैंसलेशन व्हाट यू आर गेटिंग, 2 -1 -4 3 आपको मिलता है कि नहीं ये एलिमेंट्स। इसका आपको क्या करना है, अलग से एक डिटर्मिनेंट बना देना है। तो दैट बिकम्स 2 -1 -4 3 2 -1 -4 3। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो माइनर हो जाएगा। फाइन, so we'll expand this determinant, 3 into 2 6 minus -4 into -1 that is 4, that is 2। so आंसर मिला 2। ये 2 जो है वो M11 है, मतलब कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर हुआ। उसी तरह से जो आपको ये सेकेंड एलिमेंट जो हम ले रहे हैं, रो वाइज जा रहे हैं, दैट मीन्स द एलिमेंट पोजीशन इज 1 2। तो हम अभी इसका माइनर निकालेंगे, दैट मीन्स M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो आप देख लो ना, वो 2 कौन से रो में है, वो रो को एलिमिनेट कर दो। वो 2 कौन से कॉलम में है, वो पूरे कॉलम को एलिमिनेट कर दो। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, तो -3 -1 2 3 -3 -1 2 3। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा उसका माइनर M12। so if I expand this determinant, 3 into -3 -9 minus 2 into -1 -2, finally it will be -9 plus 2, that is -7। so -7 is a minor of position 1 2। अब हम ये तीसरे एलिमेंट का, जैसे पोजीशन 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो वो कौन से रो में है उसको एलिमिनेट करो, और वो कौन से कॉलम में है वो पूरा एलिमिनेट कर दो। कौन से 4 एलिमेंट बचते हैं भाई साहब, -3 2 2 -4। so now I am going to find minor of 1 3, element will be -3 2 2 -4 -3 2 2 -4, what will be the answer, -3 into -4 plus 12 minus 2 into 2 4, this is going to be 8। शांति से माइनर निकलेगा। चलिए अब ये तो मेरा पहला रो खत्म हो गया, तीनों एलिमेंट का माइनर निकल गया। उसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट ये जो है -3, उसके लिए माइनर निकालो। तो वो -3 जो है वो कौन से रो में है, तो सेकंड रो को एलिमिनेट कर डालो। वो -3 कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो। तो कितने एलिमेंट बचेंगे, वो 4 एलिमेंट कौन से बचेंगे, so that will be 2 3 -4 3 2 3 -4 3। so now I am finding M21, क्योंकि ये जो एलिमेंट हुआ है वो कौन से रो में है, सेकेंड रो में, और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। फाइन, so now this will be 2 3 -4 3 2 3 -4 3। शांति से डिटर्मिनेंट प्रॉपर बनेगा, आंसर आराम से आना है सोल्व करके। 3 into 2 6 -4 into 3, that is -12।
So final answer will be 6 plus 12, that is 18. So M21 is 18. Now next हमारा माइनर निकलेगा नंबर 5th. In that minor I have to find for second row and second column M22. ओके M22. अब देख लो मैं एकदम ऑर्डर में जा रहा हूं, वन बाय वन आई एम गोइंग इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज ये 2 के लिए मेरा माइनर निकलना है विच इज इन द सेकेंड रो इन सेकेंड कॉलम. तो देखो ना वो सेकेंड रो में है एलिमेंट और वो सेकेंड कॉलम में है. सेकेंड रो को एलिमिनेट करो, सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करो. कौन से 4 एलिमेंट बचेंगे? 1 3 2 3. 1 3 2 3. 3 into 1 3 minus 3 into 2 6, that is minus 3. नेक्स्ट देखो 9 एलिमेंट के 9 माइनर निकलने वाले हैं. 6th पे हम पहुंच गए हैं, दैट इज M23. सेकेंड रो थर्ड कॉलम. देखो तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? -1. उसका माइनर निकालने के लिए वो रो और वो कॉलम कैंसिल करो जिसमें वो खुद है. तो सेकेंड रो कैंसिल हो जाएगा, थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा. तो कौन बचते हैं? 1 2 2 -4. 1 2 2 -4. This way. Expand it. -4 into 1 -4, -2 into 2 4, -4 -4 -8. So this is the minor for second row and third column. Next minor, next element कौन सा आएगा? देखो भाई सेकेंड रो पूरी खत्म हो गई. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1. ओके तो देखो ना थर्ड रो को कैंसिल करो और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को कैंसिल करो. तो कौन बचते हैं? 2 3 2 -1. 2 3 2 -1. 2 3 2 -1. 2 into -1 -2 -2 into 3 6, that is -8. नेक्स्ट चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे. M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम. थर्ड रो सेकंड कॉलम. आइए मैट्रिक्स में देखिए ये एलिमेंट जो है ना इसके लिए हमारा माइनर निकलने वाला है. थर्ड रो सेकंड कॉलम. थर्ड रो कैंसिल करो, सेकंड कॉलम को कैंसिल करो. कौन बचते हैं 4 एलिमेंट? 1 3 -3 -1. 1 3 -3 -1. So expand it. -1 into -1 -1 -3 into 3 -9. Final answer will be -1 plus 9, that is +8. And the final one M33 third row and third column को एलिमिनेट करो. कौन से एलिमेंट बचते हैं? 1 2 -3 2. 1 2 -3 2. एक्सपांड करो. 2 -6 2 + 6 8. स्टूडेंट्स ये हमारा पहला काम खत्म हो चुका है माइनर ढूंढने का. फर्स्ट स्टेप इज डन. Now what is the next written? Co-factor find करने हैं. How to get the co-factors? Let me show you the next process. Number 2 heading हमारी number 2 co-factors. Co-factors. Finding co-factors now, and that means you have to use
दिस माइनर्स टू फाइंड आउट द कोफैक्टर। एक मिनट, ये जो हम गाड़ी आगे बढ़ा तो रहे हैं, कोफैक्टर ये ढूंढने के लिए हमको माइनर का सहारा लेना है। आपके पास माइनर है तो कोफैक्टर है, ये बात है। इंडिपेंडेंटली कोफैक्टर नहीं ढूंढने का है हमको, कोफैक्टर ढूंढने के लिए माइनर का इस्तेमाल होना है। तो लेट मी शो यू हाउ डू वी गेट द कोफैक्टर्स। अच्छा, एक और बात, तो जितने जो कि माइनर के ये बदौलत ये कोफैक्टर मिलने वाले हैं, तो जितने माइनर हैं उतने ही कोफैक्टर हैं, मतलब जितने एलिमेंट होने हैं उतने ही कोफैक्टर्स ढूंढने हैं। 9 एलिमेंट है, 9 कोफैक्टर निकलेंगे। इसे 9 एलिमेंट के हिसाब से 9 माइनर निकले, तो 9 एलिमेंट्स है तो 9 कोफैक्टर्स निकलने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, कोफैक्टर के लिए मैं सी लेटर यूज कर रहा हूं। नोटेशन को आप ध्यान में लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ बुक्स में या कुछ ऐसे रेफरेंस बुक्स में नोटेशंस अलग यूज करके उन लोग प्रेजेंट करते हैं, उससे कंफ्यूज होने का नहीं। आपको जो कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से आगे बढ़ने का। आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर नोटेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग which may not be used in other books। तो उसका मतलब ये नहीं समझने का है कि नोटेशन का डिफरेंस होने से कुछ गड़बड़ है। फाइनल आंसर तो आपको वहीं मिलने वाला है ना, इनवर्स ढूंढ रहे हैं ना हम। ये जो पूरा एडजॉइंट में हमारा जो कार्यक्रम एडजॉइंट मेथड का जो हो रहा है, उसमें फाइनल हमारा आंसर तो इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढ के लेने का है। फाइन, सो नाउ वी आर मूविंग टू द कोफैक्टर एंड इन दैट C11, मतलब आप समझ रहे हैं अभी कि ये एलिमेंट जो है ना फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम वाला, उसका यहाँ कोफैक्टर निकलने जा रहा है। ओके, so now we are finding these cofactors. How to find these cofactors? Take a look. हमें -1 ब्रैकेट में लिखना है और उसके पावर में 1 + 1 लिखना है। क्यों 1 + 1? तो के कौन सा रो है? फर्स्ट। कौन सा कॉलम है? सेकंड। ये देखो ना, C11, C11 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पोजीशन है ना उसका, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, इसलिए 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। वही देखो पावर में चढ़ गया ऊपर, 1 + 1, पोजीशन ऑफ रो प्लस पोजीशन ऑफ कॉलम। किसके पावर में डालने का? बेस ऑलवेज -1। ऑलवेज बेस इज -1। आगे बढ़ता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय इनटू M11। C11 के लिए काम में आएगा M11। जिस पोजीशन का आप कोफैक्टर ढूंढ रहे हो उस पोजीशन का माइनर आपको काम में आएगा। लेकिन कोफैक्टर क्या माइनर ही डायरेक्ट नहीं रहता है? माइनर के साथ उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया देखना, -1 के पावर में 1 + 1। चल जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। -1 के पावर में 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, इनटू माइनर का एलिमेंट क्या था? M11 का। देखना, व्हाट वाज M11? दैट इज 2। चलिए वो सब्स्टिट्यूट करना है आपको। 2 -1² मतलब 1, 1 × 2 मतलब 2। समझा? बस यही है। आगे के कोफैक्टर्स के एलिमेंट ढूंढते जाइए। C12, चलिए आप खुद बता सकते हैं मुझे अभी क्या करने का है। -1 तो फिक्स है, -1 ऑलवेज बेसिस -1 फिक्स। पावर में क्या करेंगे? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है ना, 1 2 1 + 2, और इसके साथ कौन सा माइनर?
मल्टीप्लाई कर देंगे M12, उसी पोजीशन का माइनर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -1 ये हो जाएगा 3, और M12 क्या आया था जी? M12 was -7, M12 was -7। चलिए भाई, -1 इंटू -1 रेज टू 3 मतलब -1, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -7, that is going to be +7, -1 इंटू -7 +7। चलिए थर्ड कोफैक्टर ढूंढिए। -1 बेस में फिक्स है, 1 + 3 इंटू M13। चलिए भाई, -1 रेज टू ये होता है 4, और M13 क्या है जी? M13 8 है जी। -1 रेज टू 4 मतलब +1 into 8, it will be going to be 8। चलिए फोर्थ, C21। भाई साहब कोफैक्टर के लिए C है। अब हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। -1 तो फिक्स है भाई बेस, ऊपर पावर में आएगा 2 + 1 इंटू M21, दैट इज -1 रेज टू 3 इंटू M21 क्या हो जाएगा? M21 that is 18, 18 -1 raised to 3, -1 into 18 -18। चलिए नेक्स्ट C22, -1 बेस में फिक्स है, 2 + 2 इंटू M22। चलिए -1 raised to 4 इंटू what is M22? -3, -1 raised to 4 +1 into -3 -3। चलिए सिक्स एलिमेंट में मैं पहुंच रहा हूं, देख लो। C23 -1 raised to 2 + 3 into M23। चलिए भाई, -1 raised to 5 into M23 क्या है ऊपर देख लो, -8, and that means -1 raised to 5, -1 into -8 +8। ओके चलिए 7, C31 -1 raised to 3 + 1 into M31। चलेगा -1 raised to 4 into what was M31? M31 was -8। okay, -1 raised to 4 +1 into -8 -8। ले भाई नेक्स्ट C32 -1 raised to 3 + 2 into M32। चले -1 raised to 5 हो जाएगा, और M32 क्या निकाला था मैंने? +8। -1 raised to 5 -1 into 8 -8। 9, C33 -1 raised to 3 + 3 into M33 -1 raised to 6 into M33 क्या था जी? M33 was 8। -1 raised to 6 +1 into 8 +8। स्टूडेंट 9 एलिमेंट मिल गए। ये कोफैक्टर के एलिमेंट है। कोई भी बोलता है कि सी से है तो सी के हिसाब से कोफैक्टर एलिमेंट है, एम के हिसाब से माइनर के एलिमेंट है। स्टूडेंट्स, आफ्टर गेटिंग दिस कोफैक्टर वी हैव टू गो फॉर एडजॉइंट। लेकिन स्टूडेंट्स
मुझे थोड़ी बात कोफैक्टर के लिए करनी है। जितने भी आपने कोफैक्टर के एलिमेंट ढूंढ लिए हैं, इसके बाद आप लोग कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना देंगे। देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। स्टूडेंट क्या बनेगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स। एलिमेंट का पोजीशन के हिसाब से उस एलिमेंट को उस पोजीशन में रख दो और मैट्रिक्स बना दो, तो कोफैक्टर के मैट्रिक्स बन जाएगा। हमने यहाँ पे कोफैक्टर का क्या ढूंढा है? एलिमेंट्स। नाउ दिस एलिमेंट वी आर यूजिंग टू मेक अ मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो भाई साहब, ये सब एलिमेंट को आप प्रॉपरली उस पर्टिकुलर प्लेस पे सब्सटीट्यूट करके मैट्रिक्स बना लो। 2 7 8, मैं रो वाइज जा रहा हूं। 2 7 8, -18 -3 8, -18 -3 8, and last row -8 -8 8। बस यहाँ हमारा ये स्टेप खत्म हो रहा है। ऐसे तो एलिमेंट ढूंढ लिया, मतलब हमारा स्टेप हो चुका था, मगर ये हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको तैयार रखा है क्योंकि इसको यूज है। देख लो ना आगे। अब हम आगे बढ़ते हुए, ये मेरा भाई सेकेंड स्टेप हो चुका, कोफैक्टर। नाउ लास्ट स्टेप एडजॉइंट पे आना है। एडजॉइंट, देख लो, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। थर्ड हेडिंग मार दो, adjoint। okay, that is adjoint matrix, that is adjoint matrix। स्टूडेंट्स, ये adjoint का मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में ADJ लिखते हैं, बिकॉज वी आर फाइंडिंग adjoint matrix of A। क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स कंसिडर हुआ है ना, सो ए के आधार पे हम बात कर रहे हैं, एडजॉइंट ए करके बोल रहे हैं, तो मतलब ये समझना है वी आर फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे, जरा लिख लो। एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ए। देखो भाई, अपन ने जो कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का बनाया हुआ है ना, उसका क्या निकाल लेना है? ट्रांसपोज। खत्म हो गई बात। आपने जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया है प्रीवियसली, उसका ट्रांसपोज लेना है। देखना, मैंने लेआउट बना के रखा है। व्हाट वाज द मैट्रिक्स? कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसलिए तो मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के रेडी रखा है। 2 7 8, देन -18 -3 8, -8 -8 8। ओके, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ये हमारे को एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। एडजॉइंट ए, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम। 2 7 8, second row will become second column, -18 -3 8, and third row will become third column, -8 -8 8। ये आपका आ गया एडजॉइंट ए। स्टूडेंट्स, आप देखो, मैंने ये तीनों तीन हिसाब खत्म कर दिए, तीनों तीन पॉइंट कर लिए। अब जबकि ये तीनों तीन हो जाएंगे कंप्लीट, इसके बाद फाइनल इनवर्स फाइंड होने का एक फॉर्मूला लागू करने का है। सो नाउ
getting A inverse. I would like to give number 4. देखो ना, 3 नंबर तक हमने दे दिए थे, तीसरा नंबर था एडजॉइंट ढूंढने का, और अब हम चौथा लास्ट स्टेप का हिसाब दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो कि गेटिंग ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढने के लिए अभी अपना लास्ट और अंतिम पड़ाव। तो भाई साहब फॉर्मूला ध्यान रखो, ए इनवर्स मैट्रिक्स ढूंढना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। मेहरबानी करके इसको मॉड्यूलस ए मत बोल देना, यहाँ पे हम इसको डिटर्मिनेंट, क्योंकि वो मॉड्यूलस का इसका और इसका साइन सेम दिखता है, बट दिस इज एन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, नॉट ए मॉड्यूलस। सो डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। भाई साहब जो एडजॉइंट ए आपने ढूंढा है ना, वो यहाँ पे आपको रख देना है, और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब्स्टिट्यूट कर देना है। भाई जी इट विल बिकम 1 अपॉन, ए डिटर्मिनेंट ये आपने ऑलरेडी ढूंढा था ना स्टार्टिंग में। ए भाई ये देख, डिटर्मिनेंट वाज वैल्यू वाज 40। यहाँ पे वो डिटर्मिनेंट निकाल के ये था इसलिए भी क्योंकि हमको ये टेस्ट करने का था कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है कि नहीं। दैट वाज आवर रिक्वायरमेंट इनिशियली, प्रीवियस, पहले हमने जो कैलकुलेशन ये देख लिया, कर लिया। बट नाउ सर दिस डिटर्मिनेंट ए इज यूज्ड इन द ए इनवर्स जो हमको फाइंड करना है, उसमें काम में आ रहा है। तो वापस नहीं ढूंढना है वहां पे ए डिटर्मिनेंट ए, वापस मत ढूंढने बैठना, ये ऑलरेडी तुमने सॉल्यूशन में ढूंढ के लिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट देयर। आइए चलिए, तो आंसर क्या था डिटर्मिनेंट का 40, और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आपने अभी ऊपर फाइंड किया, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या है 2 माइनस 18 माइनस 8, 7 माइनस 3 माइनस 8, और 8 8 8। ओके, दैट इज योर आंसर। आपको अंदर लेना है 40 को तो अंदर ले लो, बाकी वो बाहर ही रखते हैं ना हम, ऐसे भी हम कॉमन लेके बाहर रखना पसंद करते हैं। अदरवाइज यू कैन टेक 1 अपॉन 40 इनसाइड, सभी एलिमेंट को अपॉन में 40 लिख देने का, और क्या। सो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंटली, जो मैंने ये पूरा डिस्कशन जो किया है, एक बार खुद आप प्रैक्टिस करिए सेम क्वेश्चन। और मैं चाहूंगा जितने का भी अपन ने इनवर्स ढूंढा है आगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ढूंढा है, आप सभी क्वेश्चन को एडजॉइंट मेथड से ट्राई करो, यू विल गेट द सेम आंसर। क्योंकि आपने प्रॉपर्टी में देख लिया है इनवर्स यूनिक होता है, इनवर्स मैट्रिक्स कभी अलग अलग नहीं हो सकते। एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही ए इनवर्स का मैट्रिक्स होता है। तो मेथड भले अलग हो, ए इनवर्स का मैट्रिक्स तो सेम मिलेगा। तो आप जो भी हमने आगे के क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से किए हुए हैं, एक्सरसाइज के भी आगे के देखो, वो लेके या दूसरे भी आपने जो भी लिए सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, आप उसको एडजॉइंट मेथड से ट्राई करो, एंड यू विल फाइंड दैट द आंसर विल बी द सेम। With this note, I am concluding. Please have proper practice and revise all the things again. Thank you, friends.